Uh, Hello student, welcome to the industrial management subject, chapter number 2 and lesson number 3. Okay, so we are discussing the types of plant layout. Already we have discussed the production layout and process layout, that is a line layout. Now next is a combination layout. In the last class, in brief, I told you that it is nothing but a hybrid, or also you can call it as a mixed type of layout. Okay, so this is the combination of different technology, so you can call it as a combination layout. This is also called the hybrid or mixed type of layout. Usually a process layout is combined with the product layout. For example, refrigerator manufacturing uses the combination layout. The process or functional layout is used to produce various operations like stamping, welding, heat treatment are carried out in a different work centers as per the requirement. इसमें आप लोग देख सकते हैं अभी रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्रोसेस फंक्शनल लेआउट कैसा होता है टू प्रोड्यूस अ वेरियस ऑपरेशन स्टैम्पिंग मतलब उसका ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस भी आ सकता है उसको स्टैम्पिंग कुछ तो अलग अलग stamping, so you have to make some hydraulic machines over here, hydraulic pressing machines, then welding machine is required, sometimes heat treatment is required. So ये जो भी अलग अलग वर्क सेंटर से बनाते हैं या अलग अलग टेक्नोलॉजी मतलब so we have to go for the different layout over there. The final assembly of product is done in the product type of layout. See here, thus manufacturing various components parts process layout is used, then and for assembly the product layout used. So बाद में फाइनली आप लोगों को द रेफ्रिजरेटर असेंबली करने के लिए वो जो लेआउट यूज़ होता है असेंबली लेआउट होता है उसको कंपोनेंट्स बनाना है हम लोगों को अलग अलग कंपोनेंट्स रहता है तभी सो यू हैव टू गो फॉर द प्रोसेस लेआउट द स्टैंपिंग भी आता है वेल्डिंग भी आता है हीट ट्रीटमेंट भी आता है सो दीज कम्स अंडर because there we are producing the different parts, so that comes under the process layout. And finally if you once you get all the components it is to be assembled, so that time so you have to go for the assembly product layout. So the next type is a fixed position layout. This is also called the project type of layout. In this type of layout, the material or major components remain in a fixed location and tools, machinery, men and other material are brought to this location. So fixed position layout इसका मतलब क्या है आपको कुछ प्रोडक्ट बनाना है सो इन दिस पर्टिकुलर द आपको प्रोडक्ट बनाना है द मटेरियल जो भी है द मेजर कंपोनेंट्स वो जो भी एक ही जगह पे रहता है लेकिन जो उसके लिए काम करने के लिए आप लोगों को टूल्स और मशीनरी और लेबर चाहिए एंड अदर सिंपल मटेरियल्स वो लोकेशन को लेके जाना चाहिए. सो दिस इज कॉल्ड एज अ फिक्स्ड पोजीशन लेआउट. अभी एक आप लोग एरोप्लेन कर रहे हैं एरोप्लेन उसका बॉडी स्ट्रक्चर एक शॉप से दूसरा शॉप से नहीं ले सकते आप लोग उसका स्ट्रक्चर एक ही जगह पे रखना पड़ेगा क्योंकि वो मटेरियल उधर ही रहेगा उसका मेजर कंपोनेंट मतलब हेवी कंपोनेंट सो यू कैन नॉट ट्रांसफर देम सो देयर सो यू हैव टू carry the machines you carry the some simple machineries even the labor or men so there they have to go there in that location only. So this is called as a fixed position layout. This type of layout is suitable when one or few pieces of identical heavy production are to be manufactured and when the assembly consists of a large number of heavy parts. The cost of transportation of these parts is a very high. For example, production of satellites by ISRO. आप लोग सैटेलाइट देखते हैं उधर वो एक एक वन प्लेस टू अदर प्लेस इट इज़ टू ट्रांसपोर्ट it is very difficult and also so you cannot carry that whole product heavy components. Okay, so you want to produce such type of even the example of even aeroplane also this is the heavy one so it will be at the one place so you have to carry all the things over there. Such type of layouts are called as a
plant layout. Next, comes the group layout. There is a trend now to bring an element of flexibility into manufacturing system as regards to variation in batch sizes and sequence of operation. A grouping of equipment for performing a sequence of operations of a family of a similar components or products has become all the important. Group transport layout is the analysis and comparison of items to group them into families with the similar characteristics. GT can be GT means it is a group technology, can be used to develop a hybrid between pure process layout and a pure flow layout. This technique is very useful for companies that produce a variety of parts in a small batches to enable them to take advantage and economics of a flow in a layout. The application of group technology involves two basic steps. First step is to determine component families or groups. The second step is applying a group technology is to arrange the plant's equipments used to process a particular family of components. This represents small plants within a plants. The group technology reduces production planning time for a jobs. It reduces the setup times. सो ग्रुप टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? सो इन सिंपल वे आई कैन टेल यू. सो आप लोग जो यू वांट टू प्रोड्यूस द सिमिलर प्रोडक्ट्स, अभी आजकल आप लोग देखते हैं मोपेड भी बना सकते हैं और बाइक भी बना सकते हैं. ऑल आर बाइक्स ओनली द सिमिलर. ओके, सो एक बड़ा प्लांट रहता है, उसमें अलग अलग छोटा छोटा प्लांट कर सकते हैं आप लोग. सो इतना बर्डन नहीं होता है. एक बार स्कूटी बनाना है, एक बार टीवीएस वेक्टर बनाए. टीवीएस स्कूटी, टीवीएस वेक्टर. टीवीएस स्कूटी इज अ स्कूटर, टीवीएस वेक्टर इज अ बाइक इट इज. सो ऑलमोस्ट इट इज अ सिमिलर. सो विद इन द प्लांट, सो यू कैन मेक अ डिफरेंट प्लांट्स विद इन द प्लांट. अलग अलग ग्रुप बना के आप लोगों को बना सकते हैं. सो ऐसा करने से एडवांटेज क्या होता है? इकोनॉमिकली द फ्लो लाइन लेआउट सो कम हो सकता है. इकोनॉमिक्स ऑफ फ्लो लेआउट, सो यू कैन टेक दैट एडवांटेज ओवर देयर. Okay, so next the product design is concerned with the next topic, the product design. What do you mean by the product design? The product design is concerned with the form and the function of a product. प्रोडक्ट डिज़ाइन का मतलब क्या है? वो जो प्रोडक्ट का फंक्शन भी होना चाहिए, उसका फॉर्म मतलब उसका शेप भी कैसा होना चाहिए. फॉर्म डिज़ाइन इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट प्रोडक्ट वुड लुक लाइक. द शेप एंड अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, वो कैसा दिखना चाहिए, उसका शेप कैसा होना चाहिए, दैट इज अ फॉर्म. व्हाट इट विल बी मेड ऑफ एंड हाउ इट विल बी मेड, उसका जो शेप के लिए वो किससे बनाना चाहिए, उसको वो कैसा बनाना चाहिए. द फंक्शनल डिज़ाइन मतलब क्या होता है? डील्स विद द फंक्शन दैट प्रोडक्ट विल परफॉर्म एंड हाउ इट परफॉर्म्स. अभी एक एग्जांपल आप लोग बाइक भी ले लो. बाइक का शेप अलग होता है, उसका फंक्शन अलग होता है. आप लोग चालू करने के बाद, सो हियर इट हैज़ टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दिस इज द फंक्शन, राइट. देन व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर, उसका शेप, दैट इज द फॉर्म इट इज. दिस इज व्हाट ऑल टुगेदर इट इज अ प्रोडक्ट डिज़ाइन. प्रोडक्ट डिज़ाइन मतलब ऐसा ये होना नहीं चाहिए, उसको एक हम लोग एक उसको शेप दिया, हमारा काम नहीं होना चाहिए. अगर वो शेप वो फंक्शन भी करना चाहिए. सो इन दैट वे यू हैव टू थिंक, वो फंक्शन के लिए क्या क्या पार्ट्स चाहिए, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स रिक्वायर्ड. ओके, सो यू वांट टू गेट दैट फंक्शन, व्हाट शुड बी द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट. सो इन दैट वे यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू develop the design. The product design is the first step immediately after accepting the concept of a product. Product design, अभी आप लोग डिज़ाइन प्रोडक्ट का प्रोसेस, एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लेना पड़ेगा तो उसका स्टेप अलग होता है. कस्टमर रिक्वायरमेंट, एक्चुअली प्रोडक्ट डिज़ाइन प्रोसेस के बारे में आप लोग इन डीप इफ यू इन्वॉल्व इन दैट,
So you want to design something, first you need a customer requirement, accordingly you have to prepare the concept. But particularly, specifically product design, the product design is the first step immediately after the accepting the concept of the product. ये प्रोडक्ट है, उसका कॉन्सेप्ट होने के बाद now this will be the first step. The product design has a direct bearing on a plant layout and in process material flow. In the process of product design, one has to critically analyze different design features with the relevance to place of use, substitute materials and carefully plan equipment alternatives of a manufacturing the products. So इस अभी फाइनलाइज हो गया, मेरे को ये प्रोडक्ट बनाना है, उसका एक आपके पास रफ स्ट्रक्चर भी रहता है, ओके, उसका रफ शेप भी रहता है, लेकिन उसको आप लोग विथ स्पेसिफाइड डायमेंशन देना चाहिए. वो होने के बाद उसको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, उसको अलग अलग डिज़ाइन फीचर से एनालिसिस करो. अगर मैं ऐसा किया तो क्या होता है, बिकॉज यू वांट टू डिज़ाइन समथिंग, देयर आर नंबर ऑफ वेज आर देयर एंड विच इज़ द सुटेबल. सुटेबल का मतलब क्या है, नाउ अगेन द कॉस्ट will be considered. So in what, in simple way, so I can produce this. So like that हर एक चीज़ को आप लोग को ये कंसिडर करना पड़ेगा. अभी सिंपल आप लोग ले लो, एक चेयर ले लो, चेयर का डिज़ाइन करना मतलब पड़ेगा. सो उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, 4 लेग रहता है और बैक सपोर्ट रहता है. देन यू वांट टू पुट द हैंड, देयर आर 2 सपोर्ट्स. व्हाट इज़ दैट फंक्शन? फंक्शन इसका मतलब वो मूव नहीं होता है, आप लोग बैठने के बाद वो सस्टेन करना चाहिए. बाइक ले लो, हाँ, अभी छोटा छोटा पार्ट बना के आप लोग बाइक बना सकते हो, वो मूव भी हो सकता है. उसका फंक्शन क्या है, 2 आदमी बैठने के बाद भी वो जाना चाहिए. सो दिस इज व्हाट द एग्जैक्ट फंक्शन. सिंपली इट इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दैट इज नॉट द कंप्लीट डिजाइन. ओके, सो व्हाई यू आर यूजिंग दैट बाइक, सो इट विल कैरी द पर्सन. Okay, so that sustainability it should have, so accordingly you have to design, right? So this is what the design, product design it is. Then there are steps involved in that. The first design, new product strategy development, idea generation, screening and evaluation, business analysis, development, testing and last one is a communication. अगर आप लोग को प्रोडक्ट डिज़ाइन करना पड़ेगा मतलब, सो दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस आर देयर, सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू फॉलो. सो वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन दैट प्रोडक्ट डिजाइन. द न्यू प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, सो विल डिस्कस वन बाय वन नाउ. न्यू प्रोडक्ट स्ट्रेटजी प्रोवाइड्स कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस फॉर द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस through assessment of internal experience and external opportunities. See, new product, the first is what, new product strategy development. अगर आप लोग को न्यू प्रोडक्ट करना है, सो क्या करना पड़ेगा, provides a corporate strategic guidelines for the new product development process. कैसा, through what, assessment of internal experiments and experience and external opportunities. सो मतलब इसका मतलब क्या होता है, ऑलरेडी इफ यू हैव अ इंडस्ट्रीज, राइट, आजकल देखते हैं आप लोग, ये मारुति का ये एक वर्जन आया, फ़ोन का भी आप लोग ले लो, हाँ, अलग अलग सैमसंग यूज़ करते हैं, ओप्पो यूज़ करते हैं, अलग अलग वर्जन आते जाते रहता है. ओके, सो बिकॉज दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कारपोरेट का स्ट्रेटजी गाइडलाइंस फॉलो करके इंटरनल एक्सपीरियंस क्या है, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ क्या है. अगर मैं नया प्रोडक्ट मेरे को इंट्रोड्यूस करना है, सो वेदर आई एम एबल टू प्रोड्यूस इट और नॉट. इफ आई प्रोड्यूस इट, व्हाट आर द एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज, वेदर आई कैन सेल इट और नॉट. ओके, सो वंस इट इज डिसाइडेड, द नेक्स्ट idea generation involves the use of various idea sources and idea generation techniques required to identify new ways to satisfy needs and monitor the evolving technologies. आप लोग फ़ोन का भी ले लो, क्योंकि यू आर ऑल फैमिलियर विथ योर फ़ोन ओनली. फ़ोन यूज़ करते थे पहले. ओके, सो फर्स्ट जस्ट आई कैन रिवाइज द हिस्ट्री. So before that, so incoming call also will be charged.
okay, was charged and outgoing charged. If the outgoing one call, if it is a 16 rupees, when you get any call from the outside, it will charge, it was charged about 8 rupees. ओके वो भी हो गया, इनकमिंग फ्री हो गया, आउटकमिंग सो इट विल बी चार्ज. लेकिन बाद में क्या हो गया, कलर मॉनिटर आया. कलर मॉनिटर, देन रिंगटोन, वो फ़ोन पे ही रिंगटोन आया. देन रिंगटोन आप लोग जो भी स्टोर डाउनलोड करते हैं वो भी रिंगलोड, बाद में उसमें इंटरनेट भी यूज़ करने को चालू हुआ. सो लाइक दैट वेदर आई एम एबल टू प्रोड्यूस इट और नॉट. सो व्हेन आई स्टार्टेड, क्योंकि हम लोग यूज़ करने के बाद ये रिंगटोन ऐसा होना चाहिए था, मतलब दिस इज द कस्टमर रिक्वायर्ड, अकॉर्डिंगली द इंडस्ट्री ऑल स्टार्ट थिंकिंग हाउ टू डेवलप दिस. ओके, सो दिस इज व्हाट द आइडिया जनरेशन. देन वो आइडिया जनरेशन टेक्निक्स क्या है, वो रिक्वायर्ड आइडेंटिफाई, उसको यू आइडेंटिफाई दैट हाउ टू रीच दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट of the customer and how you are going to satisfy the needs of the customer. Then you monitor it and involve the evolve नया नया टेक्निक यूज़ करो, आप लोग सर्च करो. ओके, सो दिस इज व्हाट द आइडिया जनरेशन. स्क्रीनिंग इज द डेवलपमेंट एंड सिस्टमेटिक ऑफ अ क्राइटेरिया टू इवेल्युएट द पोटेंशियल ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स. स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, आप लोग जो भी कर रहे हैं उसको सिस्टेमेटिकली ठीक से देखो. ये आइडिया है, देर आर डिफरेंट आइडियाज यू हैव, डिफरेंट टेक्निक्स यू हैव, विच टेक्निक इज करेक्ट, यू स्क्रीन करो उसको. स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, ऑब्जर्व करो, उसका स्टडी करो. सो देन फाइनली यू डिसाइड इट. द नेक्स्ट स्टेप इज बिजनेस एनालिसिस इज एन इन डिपार्टमेंट स्टडी ऑफ द estimated economic feasibility of a new product ideas. बिजनेस एनालिसिस का मतलब क्या है, मेरे को न्यू प्रोडक्ट इंस्टॉल करना है, सो इंट्रोड्यूस करना है. अगर मैं इंट्रोड्यूस करने के बाद इसको कितना मैं स्पेंड करना पड़ेगा, मेरे को कितना प्रॉफिट होता है, इकोनॉमिकली आप लोग सोचना पड़ेगा, एस्टिमेट करो, मेरा इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है, मेरे को इतना बेनिफिट मिलता है. सो दैट एनालिसिस. Then the development involves developing the product itself and further development of manufacturing, packing and distribution cost estimate. बिजनेस एनालिसिस किया अभी, उसको डेवलप करने के लिए मेरे को क्या होता है, सो कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है. एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, हियर नया प्रोडक्ट नहीं है, ऑलरेडी यू हैव स्टार्टेड न्यू प्रोडक्ट. सो इन दैट व्हाट कैन आई डेवलप, इफ आई डेवलप दिस थिंग्स, हाउ मच आई हैव टू इन्वेस्ट, एंड so what how much I can distribution, how I can going to pack it, how can distribute, इसके लिए कितना cost आता है, that also you have to think very seriously. Next is testing stage thoroughly evaluates potential market acceptance through the use of market research. टेस्टिंग स्टेज का मतलब क्या है, आप लोग टेस्टिंग राइट हुआ, आपको सेटिस्फाई हुआ, लेकिन कस्टमर को सेटिस्फाई होता क्या नहीं है, सो डायरेक्टली मार्केट एक्सेप्ट करता क्या नहीं है. टेस्टिंग मतलब, सो विद इन द इंडस्ट्री टेस्टिंग इज नॉट सफिशिएंट, सो यू हैव टू गो टू द मार्केट एंड यू हैव टू टेस्ट physically in the market. So then only you will get the exact idea what your new product and what is to be, whether it is acceptable or it is to be modified. Commercialization is the actual introduction of the product into the marketplace with all the related decisions and resources commitments. Resources commitments, whether you are going to produce so within your cost or not. Commercialization का मतलब क्या है, almost it is a, so you have to accept some benefits from that, right. मैं 10 रुपये में बेच रहा हूँ, मतलब मेरे को 10 रुपये में एटलीस्ट shall I get 10%, 20%, right. Okay, so that is what the commercialization, the मतलब actual production of the product into the marketplace. मार्केट प्लेस में हम लोग वो छोड़ने के बाद, इंट्रोडक्शन करने के बाद, इंट्रोडक्शन करने के लिए उसका रिलेटेड डिसीजन लेना पड़ेगा एंड रिसोर्सेस कमिटमेंट्स वो भी आप लोग देखना पड़ेगा.
रिसोर्सेज कमिट, अभी मेरे को ये विद इन द वीक आई कैन गिव योर 10 प्रोडक्ट्स, वेदर यू आर एबल टू, और यू आर एबल टू get it or not. So in that way you think it. So this is what the commercialization of the last step. Next we'll discuss factors to be considered while designing the product. अभी मेरे को डिज़ाइन करना है, मतलब क्या क्या कंसिडर करना पड़ेगा. मेरा मन में आया मेरे को ऐसा करना चाहिए, अगर मैं ऐसा करने से मेरे को खुद सेटिस्फेक्शन होना नहीं चाहिए. अगर आप लोग बिजनेस करना है, सो यू वांट टू डू द बिजनेस, so you should have some profits. So you want to get some profits, there are some factors. Okay, so that is to be considered. There are some factors are there, so you consider in the sense, मतलब वो देखना पड़ेगा. कंसिडर करना मतलब इसको देख के आप लोग प्रोडक्ट डिजाइन करो. सो इफ यू आर नॉट कंसिडरिंग दीज थिंग्स, यू मे बी फेल इन योर बिजनेस. फर्स्ट क्या है, कस्टमर रिक्वायरमेंट. मैं जो भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, फूड आइटम रहने दो, व्हीकल रहने दो, या फर्नीचर, जो भी वट एवर यू जस्ट यू आर गिविंग द सर्विस. ओके, सो मेरा सर्विस से कस्टमर सेटिस्फाई होता है क्या नहीं है. कस्टमर कभी सेटिस्फाई होता है, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट्स. Okay, so accordingly you start your producing your product. Convenience of the user or operator. मैं जो भी करता हूँ, यूज़र को भी वो फ्रेंडली होना चाहिए, ऑपरेटर को भी इजी करना होना चाहिए. इतना कॉम्प्लिकेटेड से मेरे को प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं करना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड करके उसको मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहिए. ओके, एक बार ऐसा होता है हम लोग जो कुछ भी लेते, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़ इट. देर आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ फीचर्स. इसका फीचर्स ऐसा रहता है, देर यू फाइंड सम कॉम्प्लिकेशन इन दैट. ट्रेड ऑफ बिटवीन फंक्शन एंड अ फॉर्म. टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड. कौन सा मटेरियल यूज़ करने से मेरे को फायदा होता है उधर. वर्क मेथड्स एंड इक्विपमेंट्स. कॉस्ट एंड प्राइस रेशियो. प्रोडक्ट क्वालिटी क्या होना चाहिए. प्रोसेस कैपेबिलिटी. इफेक्ट ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन. ये सभी फैक्टर्स को कंसीडर करके आप लोगों को डिजाइन करना पड़ेगा. देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ प्रोडक्ट डिजाइन. टू जनरेट अ प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन. क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आप लोगों को. हाँ, मेरे को एक प्रोडक्ट ये यूज़ किया, 1 साल लग चले तो बस, ऐसा नहीं बोलना चाहिए. अगर इफ़ आई स्टार्ट दिस प्रोडक्ट, देर इज़ अ फोरकास्टिंग, मेरे को 10 साल अगर मैं ये मैन्युफैक्चर किया तो, सो आई शुड नॉट गेट अ प्रॉब्लम इन दैट वे. सो टू जनरेट प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन. 1 साल में प्रॉफिट हुआ है, नेक्स्ट साल, सो यू विल नॉट गेट एनी जीरो बैलेंस. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट. हाँ, प्रोडक्ट डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए. टू जनरेट प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन, टू अचीव द डिजायर्ड प्रोडक्ट क्वालिटी. हाँ, वो क्वालिटी के लिए क्या करना चाहिए, डिज़ाइन प्रॉपरली करना चाहिए. सिंपली मेरा हाथ में आया मैं कैसा भी करके दे देता हूँ, ऐसा नहीं है. टू रिड्यूस द डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट टू द मिनिमम. डेवलपमेंट जो भी टाइम रहता है ना, सो मेरे को डेवलपमेंट के लिए मैं 1 साल लिया, तब तक जो भी दूसरा कॉम्पिटिटर आया रहता है. ओके, सो विद इन द मंथ आई कैन डेवलप इट एंड आई इंट्रोड्यूस टू द मार्केट. सो ऑटोमेटिकली कॉस्ट मिनिमम हो सकता है उधर. सिर्फ डेवलपमेंट में करते गया आप लोग, प्रोडक्ट आपका फैक्ट्री में रहा, सो देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट. टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. डिज़ाइन किसके लिए करना पड़ेगा. सो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, सो इट विल बी रिड्यूस्ड. टू एंश्योर प्रोडक्टिविटी और मैन्युफैक्चरबिलिटी. सो प्रोडक्टिविटी, सो विद इन द टाइम, सो मेरे को होना चाहिए उधर. प्रोडक्टिविटी ऐसा होता है, मेरे को 2 दिन का एक काम में 1 दिन में मैं किया तो उसको प्रोडक्टिविटी. मैन्युफैक्चरबिलिटी, इजीली मैन्युफैक्चर करने के लिए मेरे को आना चाहिए. वो कैसा, ये जो ऑब्जेक्टिव है, सो आप लोग प्रोडक्ट डिज़ाइन प्रॉपरली फॉलो किए तो, सो दीज ऑब्जेक्टिव सो यू कैन अचीव ओवर देयर. सो नेक्स्ट,
The topic is a production. Production, it is a simple, it is defined as the process of transformation from raw materials or natural resources and people into the value added goods and services under control condition by applying the same form of technology to the inputs. So इसमें प्रोडक्शन का मतलब ये दो आता है उधर. One is related to the मैन्युफैक्चरिंग, वन इज रिलेटेड टू द सर्विस. प्रोडक्शन मतलब सिर्फ आप लोगों को ऐसा सोचो मत सिर्फ एक फिजिकल प्रोडक्ट. इसमें दो टाइप का आता है, एक फिजिकल प्रोडक्ट आता है, दूसरा एक सर्विस आता है. अभी हम लोग इंडस्ट्री एजुकेशनल इंडस्ट्री मतलब हमारा कॉलेज का ही ले लो आप लोग. सो दिस इज व्हाट द सर्विस इंडस्ट्री. If you take a hospital, this is the service industry. If you take a telephonic industries, that is a service industry. If you take a banking, so it is a service industry. Okay, so I think so you understand the production industries and service industries. Production industry matlab you have a physical product. Service industry also I have given an example industry. It may be a educational, or it may be a hospital, or it may be a mobile banking, or it may be a internet services, right. So these are all the service industries. In production industries so सभी में raw material रहता है, finally you get a finished product. Raw material is converted into a finished product. So this is what the production it is. फिनिश प्रोडक्ट मतलब आप लोग रॉ मटेरियल व्हेन यू टेक एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर, देन व्हेन यू गो आउट कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री, सो यू विल बी द फिनिश प्रोडक्ट. सो सिर्फ हम इधर क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है. सो दिस इज व्हाट द सर्विस इंडस्ट्री. हॉस्पिटल एक पेशेंट आता है, ही विल बिकम ही इज अ रॉ मटेरियल. व्हेन उसको कंप्लीटली ठीक हो जाता है, सो देन ही विल बिकम अ finished product. So उधर सर्विस दे रहा है, right. In production industries, the production can be defined as the process of transformation of raw materials into the value added finished goods so that it should be accepted by the customer. Service industries, it can be defined as the conversion of available of man and machine power into valuable services so that these should satisfy the customers. आई होप यू अंडरस्टूड द प्रोडक्शन का मतलब ऐसा मत सोचो हमेशा फिजिकल प्रोडक्ट रहता है. सो इट इज़ नॉट लाइक दैट. देर इज अ सर्विस इंडस्ट्री एंड देर इज अ प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, राइट. सो देन द टॉपिक इज नीड्स ऑफ प्रोडक्शन. सो to satisfy the needs of consumer by giving a right quality of the product at right time at an economical price. To increase the service abilities in all the areas. अभी आप लोग ट्रांसपोर्टेशन का देखते हैं उधर सर्विस इंडस्ट्रीज. पहले क्या करना पड़ता था, बस स्टैंड में जाके आप लोग देखना पड़ता था कौन सा बस कितना बजे है, मैं कब को कब जाना चाहिए. आजकल आप लोग यूज़ कर रहे हैं मोबाइल. सर्विस कैसा दे रहे हैं वो लोग, सर्विस एबिलिटीज़ कस्टमर को इतना इजी होना चाहिए. बैंकिंग भी आप लोग देखते हैं, पैसा फर्स्ट यू वांट टू विड्रॉ द मनी, यू हैव टू गो टू द बैंक. आजकल नहीं, ऐसा नहीं है, एटीएम है. नहीं तो किसी को पैसा देना है तो नेट बैंकिंग, सो यू कैन यूज़ द योर मोबाइल ऑल्सो. सो दिस इज़ व्हाट द प्रोडक्शन नीड्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए क्या क्या होना चाहिए. द फर्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, दैट इज़ अ कस्टमर. उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना है, गिविंग द राइट क्वालिटी. उसको क्या चाहिए वो दे दो ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. राइट टाइम, उसको कब चाहिए, एट एन इकोनॉमिकल प्राइस. वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए मैं इतना सर्विस दे रहा हूँ इतना ज़्यादा पैसा. इट इज़ नॉट लाइक दैट. देर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. टू कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. सो आपका जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, यू डोंट थिंक ओनली अबाउट योर सेल्फ. सो इट शुड बी टू डेवलप द कंट्री ऑल्सो. टू इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द कंट्री. अगर आप लोग प्रोडक्शन यूज़ करें, एम्प्लॉयबिलिटी मतलब सारे को आप काम देना चाहिए.
सिर्फ मैं अकेला बैठ के कर सकता हूँ, इतना प्रॉफिट कर रहा हूँ, बट यू डोंट थिंक इन दैट सच वे। सो आप लोग जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका वजह से थोड़े लोगों को भी एम्प्लॉयबल देना चाहिए। टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल, टू यूटिलाइज द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सो ऐसा प्रोडक्ट यूज करो, आपका कंट्री में क्या मिलता है, सो यूज इट एंड गिव इट टू द कस्टमर। टू अचीव द इनोवेटिव क्रिएशंस, उसमें इनोवेशन क्रिएटिव होना चाहिए। टू कम्पीट विद द ग्लोबल मार्केट, पूरा वर्ल्ड आपका जो इंडस्ट प्रोडक्ट यूज कर रहा है, सो यू ट्राई टू कॉम्पिटेट विद दोज पीपल। टू बैलेंस द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, बैलेंस द, अभी इकोनॉमिक ऑफ कंट्री आजकल देख रहा है, देर इज अ फ्लक्चुएशन ड्यू टू सम कोरोना एंड ऑल दोज थिंग्स। ओके, आजकल आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन में कितना कितना सारा यही अलग अलग बिजनेस आ रहा है उधर। सो इन दैट वे यू थिंक इट इकोनॉमी, कंट्री का इकोनॉमी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इट इज़ टू बी बैलेंस्ड। ओके, सो दीज आर व्हाट द नीड्स ऑफ द प्रोडक्शंस। So next topic, that is a type of production, so we'll discuss in the next class. There are different types of production systems are there. Okay, so where you can use, okay, so that with example, so we'll discuss it. Thank you one and all.